Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn to page number 83 as I'll be continuing with poem 4, Foreign Lands by Robert Louis Stevenson. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn to page number 83 as I'll be continuing with poem 4, Foreign Lands by Robert Louis Stevenson. Students, in my last video, I had recited the poem, explained and written the word meanings and had explained the first two stanzas of the poem. Now today, students, first of all, I'm going to recite the poem for you, revise the word meanings, and then I'm going to explain the remaining three stanzas of the poem. So please listen to me carefully as I recite poem 4, Foreign Lands by Robert Louis Stevenson. Please turn to page 83, children. Poem 4, Foreign Lands by Robert Louis Stevenson. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. If I could find a taller tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships, to where the roads on either hand lean onwards into fairy land, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. Students, now I'm going to revise the word meanings of this poem. The first word is trunk, which means stem of a tree. Trunk, stem of a tree. बेटा जिसको पेड़ की डगाल बोलते हैं. Trunk, stem of a tree. The second word is abroad. Abroad means in different directions. Abroad means in different directions. Third, adorned, decorated. Adorned, decorated. The fourth word is dimpling, which means curved to form indentations like dimples. The fourth word is dimplings, which means curved to form indentations like dimples. The fifth word is dusty. Dusty means covered with dust. Dusty, covered with dust. Sixth word is tramping, and tramping means walking over a long distance tiredly. Tramping, walking over a long distance tiredly. The seventh word is farther, and farther means over a large expanse of space. Farther means over a large expanse of space. Eighth word is slips, and slips means to move. Slips, to move. Ninth word is either. Either means each of two. Either, each of two. The 10th word is hand. Hand means sides. Hand, sides. 11th word is onward, and onward means forward. Onward, forward. The 12th word is dine, and dine means to eat dinner. Dine, to eat dinner. 13th word is playthings, and plaything means toys. Plaything,
toys. Now students, I would explain the poem to you. First of all, I am going to recite and then going to explain. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass, and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down, with people tramping into town. If I could find a taller tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships, to where the roads on either hand lead onward into fairy land, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. Now, students, there are 5 stanzas in the poem. Again, I am repeating, as we have got paragraphs in lesson, there are stanzas in poem. Fine? Now, I am going to read the first stanza. Up into the cherry tree, who should climb but little me. I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. Students, in this first stanza, the poet Robert Louis Stevenson imagined himself as a child. And he says that he has climbed onto a cherry tree and he has hold the trunk of the tree tightly with both his hands. And he is looking in all directions to the lands which he has not seen from the ground. बेटा, हम सबको पता है कि अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, तो हम कुछ ही दूर तक देख सकते हैं. बिल्डिंग्स, ट्रीज हमारा व्यू ब्लॉक करती है, हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं. बट इफ वी क्लाइंब ऑन अ टॉलर स्ट्रक्चर, इट कैन बी अ बिल्डिंग, अ ट्री, कुछ भी. हम अगर किसी टॉलर स्ट्रक्चर पे, कभी कभी आप जो अम्यूजमेंट स्विंग्स होते हैं जैसे जाइंट व्हील वगैरह, उसमें भी बैठते हो, तो जब आपका जाइंट व्हील एकदम टॉप पे रहता है तो आपको बहुत दूर दूर तक का व्यू एकदम क्लियर दिखाई देता है, इजंट इट? जो वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो हम जमीन पे से कभी नहीं देख पाते हैं. तो यहाँ पे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन बेटा अपने आप को एक चाइल्ड इमेजिन कर रहा है और वो कह रहा है कि ही हैज क्लाइंब्ड ऑन अ चेरी ट्री. वो एक चेरी ट्री के ऊपर उन्होंने क्लाइंब किया है एंड ही इज होल्डिंग द चेरी ट्री के जो ट्रंक है, पेड़ की जो डगाल है, उसको जोर से पकड़ा है. बिकॉज इफ यू क्लाइंब ऑन अ ट्री यू नीड टू कीप योर बैलेंस, एल्स यू विल फॉल डाउन. तो उन्होंने चेरी ट्री को पकड़ के रखा है एंड ही इज लुकिंग अब्रॉड. एंड वो ट्री के ऊपर से चारों डायरेक्शंस में वो चारों तरफ देख रहा है. एंड व्हाट ही इज लुकिंग एट द लैंड्स. फॉरेन मीन्स अननोन, जो पहले कभी नहीं देखा हो. सो दोज लैंड्स आर नोन एज फॉरेन लैंड्स. तो द चाइल्ड फ्रॉम अ चेरी ट्री, वो चारों तरफ का जो व्यू है, नजारा है, वो देख रहा है. एंड ऑल दोज व्यूज आर न्यू फॉर हिम. ही हैजंट सीन देम बिफोर फ्रॉम द ग्राउंड. नाउ द सेकंड स्टेंजा. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. The poet says कि मैंने ट्री के ऊपर से क्या देखा, ठीक मेरे बगल में एक गार्डन है जो मुझे नीचे से, अभी भी गार्डन की बाउंड्री वॉल से कुछ होगी जो नहीं दिखता है, बट फ्रॉम द ट्री आई कैन सी दैट द garden is decorated. मतलब garden is blooming with flowers are blooming in the garden, है ना. और बच्चे के आंख के सामने वो गार्डन है जो पूरे फ्लावर्स से डेकोरेटेड है. डेकोरेटेड मीन्स यहाँ पे डेकोरेट नहीं किया गया है, वो गार्डन में फ्लावर्स खिले हुए हैं. एंड दैट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एज इफ, और ऐसा लुक दे रहा है कि गार्डन को पूरे फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया है. And many pleasant places more. Pleasant बेटा means soothing, है ना, जिसको देख के मन खुश हो जाए, है ना, जिसको देख के खुशी मिले.
प्लीजिंग टू द आईज, माइंड, बॉडी एंड सोल, जिसको देख के मन खुश हो जाए, दैट इज प्लेजेंट। और कहता है कि मुझे और भी बहुत सारी प्लेजेंट चीजें ट्री टॉप से दिख रही हैं, दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर, जो मैंने कभी भी पहले नहीं देखी है। एज स्टूडेंट्स यू ऑल नो, है ना, कि हम बहुत सारी चीजें ग्राउंड से नहीं देख सकते, बट अगर हम किसी टॉल स्ट्रक्चर पे चढ़ जाएं तो हमें दूर दूर की वो सब चीजें दिखेंगी जो हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। हमारा जो व्यू है वो ब्रॉड हो जाता है। एंड कुछ ऐसी चीजें भी हमको दिखेंगी जो हमें पता ही नहीं है कि है, बट वो हम ट्री टॉप पे से देख सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेंजा, I saw the dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down with people tramping into town. अब उसने और क्या देखा बेटा? I saw the dimpling river pass. उसको दूर river, dimpling मतलब जहां वो रिवर ऐसे मुड़ती है, ऐसा when कुछ लोग स्माइल करते हैं तो बेटा कैसे डिम्पल्स पड़ते हैं, है ना, when they smile उनके चीक्स पे, है ना, डिम्पल्स पड़ते हैं। तो सेम वे जहां पे रिवर टर्न हो रही है वहां पे ऐसा लग रहा है कि डिम्पलिंग, है ना, कि रिवर्स में डिम्पल्स हैं। एंड स्काई भी एकदम ब्लू ग्लास की तरह दूर दूर तक दिख रहा है। दिस इज अ व्यू ऑफ अ कंट्री साइड बेटा। ये जो व्यू बच्चा देख रहा है ये किसी सिटी का नहीं है, ये कंट्री साइड का व्यू है। फाइन। सो उसको दूर से रिवर बहती हुई दिख रही है ना। अगर हम सिटी में किसी ट्री वगैरह पे क्लाइंब करेंगे तो चारों तरफ बिल्डिंग्स, इतनी स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स वगैरह है कि हमको कुछ नहीं दिखेगा। बट ये बच्चा कंट्री साइड में, मे बी नियर अ विलेज और समथिंग, हाँ, कोई आउटस्कर्ट्स है जहां उसको ये सारी चीजें दिख रही है। डिम्पलिंग रिवर, हाँ, कर्व होती हुई रिवर, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हाँ, डिम्पलिंग रिवर। और स्काई भी दूर दूर तक एज इफ की ग्लास, ब्लू रंग का ग्लास हो, इतना उसको क्लियर स्काई दिख रहा है। द डस्टी रोड्स को अप एंड डाउन। और आपको पता है ना, कंट्री साइड स्पेशली विलेजेस वगैरह में जो रोड्स होती हैं उसमें बहुत धूल होती है ना। तो कोई भी मूव करता है, व्हीकल्स, कार्स मूव करते हैं तो धूल उड़ती है, क्योंकि उसमें पूरी वो कंक्रीट रोड्स विलेज की या कंट्री साइड की नहीं होती है ना। तो डस्ट उड़ रही है, तो उसको दूर रोड्स भी दिख रही हैं जिसमें डस्ट उड़ रही है। एंड डस्ट क्यों उड़ रही है? क्योंकि पीपल ट्रम्पिंग इनटू द टाउन, जो वहां लोग हैं वो जो है पीपल, वो वॉक कर रहे हैं, और जब चल रहे हैं तो धूल उड़ रही है ना। एंड जो लोग हैं ट्रम्पिंग इनटू टाउन, लोग वहां से शहर की तरफ जा रहे हैं। लोग चल रहे हैं उन रोड्स पे, तो उनके चलने से डस्ट उड़ रही है, बिकॉज कंट्री साइड की रोड्स जो है कंक्रीट नहीं होती, दे आर डस्टी, तो डस्ट उड़ती हुई दिखाई दे रही है ना। सो व्हाट डज द पोएट सीज? ही सीज द गार्डन्स, द डिम्पलिंग रिवर, द क्लियर ब्लू स्काई, द डस्टी रोड्स एंड रोड्स अप एंड डाउन। ऐसे अप एंड डाउन उसको रोड्स दिख रही है, क्योंकि कंट्री साइड का सीन है तो ऊपर नीचे रोड्स हैं, वो अप एंड डाउन रोड्स जा रही हैं। एंड व्हेन पीपल आर मूविंग ऑन द रोड, जो डस्ट है वो उड़ रही है। दैट इज द रीजन द पोएट कॉल्स इट डस्टी रोड। फाइन। नाउ द फोर्थ स्टेंजा, इफ आई कुड फाइंड अ टॉलर ट्री, फादर एंड फादर आई शुड सी, टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमंग द शिप्स। अब बच्चा कह रहा है कि आई विश, चेरी ट्री तो है पर चेरी ट्री बहुत टॉल तो नहीं है, बहुत हाई नहीं होती है, तो इसकी आई विश कि मुझे कोई और टॉलर ट्री मिल जाए तो मैं और ऊपर चढ़ जाऊं, और मैं जितना ऊपर चढ़ूंगा मुझे उतना दूर दूर का नजारा दिखेगा। चेरी ट्री इज नॉट वेरी टॉल, तो बच्चा बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा है, बट बच्चा क्या विश कर रहा है कि आई विश कि मुझे कोई एक और टॉलर, चेरी ट्री से भी टॉल, है ना, टॉलर ट्री, कंपेरेटिव डिग्री टॉलर टू दी चेरी ट्री मुझे मिल जाए, तो फादर एंड फादर, दूर दूर तक मैं और आगे तक देख सकता हूं। जितनी ट्री टॉल होगी उतना व्यू और ज्यादा फार जाएगा। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स, कि ये जो मुझे रिवर दिख रही है ये तो थोड़ी ही दिख रही है, बट मैं और टॉल ट्री पे
टॉयलेटरी पे जाऊंगा तो ये जो रिवर ये जाके बहते 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 कहाँ पे खत्म हो रही है ना। ये मुझे टॉयलेटरी से दिखेगी एंड रिवर जाके कहाँ मिलती है, किसी सी में मिल रही है, और जिस सी में मिलेगी उस सी में शिप्स भी मुझे दिखाई देंगे। बट ये कब दिखाई देंगे, व्हेन द चाइल्ड क्लाइम्स अ taller tree compared to the cherry tree. In the picture you can see जो उसको country side का beautiful view the child can see from the top of the tree. Now please turn the page, the 5th stanza. To where the roads on either hand lead onwards into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. अब बेटा यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि टू वेयर दी रोड्स ऑन ईदर हैंड, दोनों हाथ के तरफ की रोड्स है ना, बोथ ईदर हैंड्स मतलब दोनों हाथ के तरफ की रोड्स है ना, ये कहाँ जाके खत्म हो रही हैं। मे बी जो रोड्स है, बच्चे तो हमेशा इमेजिन करते हैं, चिल्ड्रन आर वेरी इमेजिनेटिव है ना, आप भी बहुत कुछ इमेजिन करते हो। तो कह रहा है कि दोनों ईदर हैंड्स, दोनों साइड की रोड्स कहाँ जा रही हैं है ना। मे बी कि वो आगे 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 जाते, क्योंकि अभी तो चेरी ट्री से उसको बस वो रोड जाते दिखाई दे रही, बट वो कहाँ खत्म होती हैं नहीं पता। मे बी वो रोड्स आगे जाके किसी फेरीलैंड जाते हो ना, कि किसी परियों के लैंड में है ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके मिल रही हूँ, फेरीलैंड जहाँ पे फेरीज एग्जिस्ट करती हो, एंजल्स एग्जिस्ट करते हो। और वो जगह उस फेरीलैंड में where all the children dine at 5, जहाँ के सारे बच्चे, उस फेरीलैंड के बच्चे, डाइन करना मीन्स डिनर खाना। जनरली हम लोग डिनर कब करते हैं, 8 से 9 o'clock, 9 नाइट में करते हैं ना, 8 to 9 PM के बीच में हम डिनर करते हैं। बट ये बच्चा कह रहा है कि जो फेरीलैंड है वहां के जो बच्चे हैं वो 5 o'clock इवनिंग में सारे बच्चे डिनर कर लेते हैं। And all the playthings come alive, और कहते हैं जितने भी टॉयज हैं, बच्चों के खेलने वाले खिलौने हैं, अभी तो खिलौने को आप हिलाओगे तो वो हिलेगा, कुछ खिलौनों में आप चाबी भरते हो तो वो हिलता है, रिमोट ऑपरेटेड जो टॉयज होते हैं उनमें बैटरी डालो तो वो ऑपरेट होते हैं। बट द चाइल्ड सेज कि फेरीलैंड के जितने भी टॉयज हैं वो वहां पे अलाइव हैं, मतलब वो मूवमेंट करते हैं, दे ऑल हैव गॉट लाइफ, जितने भी टॉयज। जस्ट इमेजिन इफ यू हैव अ टेडी बेयर और आपका टेडी बेयर आपके साथ खेलता हो, बात करता हो, तो वो अलाइव है। तो द चाइल्ड इज इमेजिनिंग कि वो फेरीलैंड में जहां पे दोनों ईदर साइड्स मीन्स यहाँ पे ईच ऑफ 2, कि जो दोनों रोड्स है दोनों हैंड की, वो दोनों कहाँ जाके मिलती हैं, किसी फेरीलैंड में जाती हैं। एंड फेरीलैंड में द चिल्ड्रन दे हैव डिनर एट 5 PM in the evening। डाइन करना मतलब डिनर करना। और वहां पे बच्चों के जितने भी प्ले थिंग्स, टॉयज हैं फेरीलैंड में, वो सारे टॉयज, जितनी भी खेलने वाले चीजें हैं, दे कम अलाइव, कि उन सब में जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, वी टॉक, सेम वे वो टॉयज उनमें लाइफ है, दे ऑल्सो बिहेव लाइक अस वेयर इन दी फेरी लैंड। Fine. So I hope students, now you all must have understood the meaning of the poem. It's a very nice poem based on the imagination of the child. Fine. तो ये पोएम में आपने देखा कि कितनी सारी चीजें जो हम ग्राउंड से नहीं देख पाते हैं, अगर हम किसी, आप कभी अपने टेरेस पे ही जाओ तो आपको टेरेस का व्यू और ग्राउंड का व्यू में बहुत डिफरेंस मिलेगा। ग्राउंड के व्यू में आपको बहुत कम दिखाई देगी, बाकी तो हमारा व्यू ब्लॉक हो जाता है बिल्डिंग से, हाउसेस से, ट्रीज से, स्ट्रक्चर्स से, है ना। लेकिन अगर आप अपने टेरेस पे जाओगे तो आपको जो ग्राउंड पे दिखता है उससे ज्यादा दिखेगा, है ना। तो सेम वे अगर आप किसी कंट्री साइड में जाओ या कहीं जाओ और आप ट्री के ऊपर क्लाइंब करो तो आपको दूर दूर तक का ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा। बच्चे को भी बहुत सारे व्यू दिखे, बच्चे ने क्या क्या देखा,
बच्चे ने देखा फॉरेन लैंड्स, अननोन प्लेसेस, है ना. ही हैड सीन अ ब्यूटिफुल गार्डन डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, जो उसके नेक्स्ट डोर बगल में ही था, बट जो उसको ग्राउंड से नहीं दिखता था. बट जब वो चेरी ट्री पे क्लाइम किया तो ही सॉ द गार्डन डेकोरेटेड विद फ्लावर्स. देन ही सॉ many more beautiful places which he had not seen before. He saw the dimpling river, he saw the clear sky, then he saw the roads going up and down, है ना. He saw the roads going up and down and people tramping on the roads going towards the town. और लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं. That means ये किसी कंट्री साइड का ये सीन है. And If I could find a taller tree, the child wishes कि अगर उसको उससे ऊंची ट्री मिल जाती तो वो और दूर दूर की चीजें चाइल्ड देख सकता था, है ना. फादर एंड फादर, दूर दूर तक का, जितना हम ऊंचे क्लाइम करते जाएंगे उतना हमारा व्यू बढ़ता जाएगा, उतनी हमको दूर की चीजें दिखेंगी. To where the grown up river slips, the child is wondering कि मैं वो व्यू देखना चाहता हूं कि जहां पे ग्रोन अप, जो रिवर एकदम बड़ी रिवर है, वो रिवर जाके कहाँ मिलती है. नॉट किसी वो छोटी रिवर की नहीं, ग्रोन अप बड़ी रिवर जाके किसी सी में मिलती है. और द चाइल्ड वांट्स टू सी दैट व्यू कि वो रिवर जहाँ सी में मिलती है, और सी में क्या है, शिप्स है. चाइल्ड वांट्स टू सी द शिप ऑल्सो. देन द चाइल्ड सेज कि जो दो रोड्स मेरे दोनों हैंड्स की तरफ जा रही हैं, वो जो रोड्स हैं वो कहाँ लीड करती हैं. मे बी दे लीड टू अ फेरी लैंड, कि वो किसी फेरी लैंड में लीड करती हैं जहाँ पे सारे बच्चे डिनर 5 o'clock पे शाम को कर लेते हैं. आज जितने भी बच्चों की खेलने वाली चीजें हैं वो सारी चीजें अलाइव हो जाती हैं. वेयर इन दी फेरी लैंड. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम फॉरेन लैंड composed by Robert Louis Stevenson. And in this poem, the poet imagines himself as a child. और चाइल्ड ट्री पे चढ़ के, पेड़ के ऊपर चढ़ के क्या क्या देखता है, क्या क्या इमेजिन करता है, ये चाइल्ड के इमेजिनेशन के बेस पे पोएम है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस पोएम इज नाउ clear to you. Please do recite the poem, children. Now students, I'm going to recite the poem once again, but a small reminder, all of you please write this poem in your English notebook. I already said this in my last video ki please write this poem in your English notebook, and after writing the poem, please write all the word meanings of this poem. There are 13 word meanings. Please complete those word meanings of this poem. Now students, I'll recite the poem and then I'm going to start with the comprehension exercise. Now, please listen to me as I recite the poem once again for you. Poem for Foreign Lands by Robert Louis Stevenson. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass, and be the sky's blue looking glass. The dusty roads go up and down, with people tramping into town. If I could find a taller tree, farther and farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships, to where the roads on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. Now students, please listen to the word meanings, and after that I'm going to start with exercise A of comprehension. The new words of the poem: trunk, stem of a tree. Second word, abroad, in different directions. Third word, adorn, means decorated. Fourth, dimpling, means curved to form indentations like dimples. Fifth word, dusky, covered with dust. Dusty means covered with dust. The sixth word is tramping,
which means walking over a long distance tiredly. Seventh word is father, which means over a large expanse of space. Eighth word is slips, which means to move. The ninth word is either. Either means each of two. 10th word is hand. Hand matlab side. 11th onward, forward. Onward, forward. 12th word is dine, which means to eat dinner. The 13th word is playthings, which means toys. Now students, I'm going to start with exercise A of comprehension. The poet climbs up a tree and is filled with wonder at the things he can see. Can you recount them? अब आपको पोएम आपने पढ़ ली है. Now you need to recount कि what did the poet see from the top of the tree. The first one. Please do this exercise right now in the book, and later now you need to do this exercise in your notebook. The first one. The poet could see a dash next door, which was full of dash. Now students, in the first stanza we had read that the child, he climbs a cherry tree, है ना, to look at the places which he has not seen before. Now the first one is the poet could see a dash next door which was full of dash. अब second stanza में फर्स्ट में तो ये बताया कि वो चेरी पे ट्री पे चढ़ा, उसने जो ट्रंक है जोर से अपने दोनों हाथों से टाइटली होल्ड करके रखी थी so that he could maintain his balance, he would not trip down. And in the second stanza what is mentioned कि next door पे पोएट को क्या दिखा जो उसको ग्राउंड पे से नहीं दिख रहा था. Next door he could see a garden, है ना. The poet could see a garden next door. Next door मतलब ठीक बगल में, है ना. आप बोलते हो कि नहीं my next door neighbor मतलब ठीक आपके बगल वाले घर में. Next door मतलब ठीक आपके घर के बगल वाले. Next door मतलब ठीक बगल वाला घर. तो पोएट के ठीक बगल में क्या था, एक गार्डन था. नेक्स्ट डोर देयर वाज अ गार्डन, बट गार्डन के अंदर का व्यू उसको ग्राउंड पे से नहीं दिखता था. और उसको अच्छा गार्डन का व्यू कब दिखा, व्हेन ही क्लाइंब द चेरी ट्री. द पोएट कुड सी अ गार्डन नेक्स्ट डोर व्हिच वाज फुल ऑफ. हाँ, हमने सेकंड स्टैंजा में क्या पढ़ा है, adorned with flowers before my eyes. Adorned means decorated, which was decorated with flowers. तो यहाँ पे decorated का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे flowers bloom कर रहे थे. So full of flowers, F-L-O-W-E-R-S, flowers. Fine. तो first में क्या हो जाएगा, the poet could see a garden next door which was full of
flowers. So, first stanza में it is mentioned that he climbed a cherry tree, है ना? He is imagining himself as a child and he is holding the trunk of the tree with both the hands to maintain his balance, and while holding the hands he is looking in all directions and he is seeing foreign lands, means the lands which is not seen before. And in the second stanza he says कि in just my next door there is a garden which is adorned, which is decorated with flowers. जो उसको कहाँ से दिख रहा है? From the cherry tree. So first वाला fill in the blank का बेटा क्या होगा? The poet could see a garden next door which was full of flowers. I hope students, all of you have done the first one. That's all for today, students. We'll be continuing the rest of the fill in the blanks in the next video. But please do recite the poem again and again. Write the poem in your English notebook and write the word meanings also. That's all for today, children. Thank you, students. Have a good day ahead.